Hello, everyone. My name is Kamesh Bunsoria, and I welcome you again on behalf of IAS Numa. I discuss economy here, and so let's start economy then. In the previous lecture, we discussed all these things. Today, we are going to discuss mainly liberalization and the response of Indian economy after 1991, mainly in respect of liberalization. Okay. Then in the previous lecture, we discussed about Industrial Policy Resolution of 1948, where this resolution divides or classifies the Indian industries into four types. Okay. Then we also discussed about Industries Development and Regulation Act of 1951. Here we talked about licensing requirement. Licensing requirement. Then Monopolistic and Restrictive Trade Policy Act, or in short, we call it MRTP, right? This act, we have seen in the previous lecture, the provisions regarding this act, where it classifies the industries on the basis of investment as monopoly, right? As monopoly, and government, after declaring them as monopoly, used to restrict the production or the functions of such industries. Then we also discussed the Foreign Exchange Regulation Act, where we saw the permission the permission required to for foreign transaction, and these permissions were given by RBI. Okay. Then our today's agenda is discuss liberalization in detail. We will see the various provisions related to liberalization and also the Indian economy's response to liberalization. Okay, then. So this is a small diagram of a flowchart which I would like to share. Here we have discussed this part like meaning and the need of economic reforms. And here you can see meaning. What do you mean by economic reforms? It's simply a set of policies, rules, and regulations. All these things we have discussed. Next is need. What was the need? Then poor performance of public sector. By public sector, I basically mean public enterprises, or PSE, PSE and PSU. Then you can say, well, sir, what is PSE and PSU and what are the differences between them? Look, PSE are simply public sector enterprises and PSUs are public sector undertaking. PSUs in general, PSUs in general are created by an act of parliament, right? Are created by an act of parliament, like like LIC. Okay. Then, in such case, when any PSU is created by an act of parliament, then in such case, if you need to change any provision in that particular PSU, you need to have a permission from LIC, from parliament. What do I mean? I simply mean, अगर ये किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बने हैं, तो जब आपको इनमें कोई चेंज करना होगा किसी इस पर्टिकुलर पीएसयू में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एलआईसी में कल गवर्नमेंट बोले कि नहीं, मैं अपना कुछ स्टेक यहाँ से निकालना चाहती हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए उस गवर्नमेंट को क्या करना होगा? पार्लियामेंट से एक एक्ट पास कराना होगा। जबकि पीएससीज ये क्या होते हैं? ये भी गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, बट दे आर नॉट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो 1990 से पहले वी वर सफरिंग फ्रॉम द पुअर performance of public sector, mainly PSE or PSU, in terms of efficiency, in terms of efficiency and adverse balance of payment। ये हम लोगों ने देखा कि हाँ, हमारा balance of payment adverse हो गया था। mainly current account deficit was very high, ठीक है ना? current account deficit, fiscal deficit was very high, ठीक। देन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इवन फोर्टनाइट तक के लिए ही हमारे पास पैसा था फॉरेन एक्सचेंज में, ये भी हम देख चुके हैं। ह्यूज डेट ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इससे पहले भी क्या कर रही थी? आईएमएफ एंड ये जो अपना है वर्ल्ड बैंक, यहाँ से पैसा ले जरूर रही थी, बट ये जो स्पेंड कर रही थी गवर्नमेंट, वो काफी इरेशनल वे में था। दे वर नॉट क्रिएटिंग एसेट, दे वर मेनली फोकसिंग ऑन schemes for generating employment without creating asset, and this was the reason that why our fiscal deficit was very high, which was in double digit then, sorry, okay, which was around, I would say, 8%, around 8%.
then inflationary pressure and terms and conditions of World Bank, which we'll see later. After that, our new economic policy of 1991 is basically divided into two segments, structural reform and stabilization measures. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स मेनली डील्स विद वीक इंस्टेंट सिचुएशन जो कि उस वक्त हमारे सामने थी, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जब मैं बात करता हूं तो वो बेसिकली है एलपीजी. ओके, देन मूविंग ऑन नेक्स्ट, मिड 1980s की अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर कि मिड 1980s में, तो देन गवर्नमेंट आल्सो took some steps to reform, to make some economic reforms, and these were mainly limited deregulation and partial liberalization. What do I mean by limited deregulation and partial liberalization? Then I mean government in during 1980s increased investment limit under MRTP, increased investment limit under MRTP from 20 crore to 100 crore. What does it mean? It means कि अगर कोई इंडस्ट्री 20 करोड़ से 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम मोनोपोली नहीं डिक्लेयर करेंगे. देन दीज रिलैक्सेशन इन लाइसेंसिंग रूल्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ इंडस्ट्रीज मेनली 56 to 26, earlier we required a license for about 56 industries, but after 1980s steps, now only for 26 industries licensing was required. ठीक, देन इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडवेट. मॉडवेट इज सिंपली मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स. ये जो टैक्सेशन है ये हम अपने टैक्सेशन वाले लेक्चर में अच्छे से इसको पढ़ेंगे. आफ्टर ऑल, आफ्टर दीज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉड बैंडिंग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. देन सर ब्रॉड बैंडिंग क्या है? सिंपली आप इसको समझिए कि अगर मेरी गवर्नमेंट किसी एक इंडस्ट्री को परमिशन देती है कि आप माने कि आप एक कैटेगरी में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, आपको इसका लाइसेंस है. उस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं स्नैक्स, ठीक, अब इस पर्टिकुलर स्नैक्स की कैटेगरी में आप चिप्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक, बिकॉज ऑफ ब्रॉड बेंडिंग आप चिप्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. आप सिंपली नमकीन्स, आप नमकीन का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. और जो जो भी सारी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती हैं आप उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं. अर्लियर इससे पहले ऐसा नहीं था, आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत या अलग अलग परमिशन की जरूरत होती थी. इस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हम ब्रॉड बैंडिंग लेके आ रहे हैं, आप अपनी कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट योर प्रोडक्शन शुड बी अंडर दी लाइसेंस्ड प्रोडक्शन लिमिट. अगर आपकी प्रोडक्शन की लाइसेंस लिमिट जो है वो 100 टन की है तो आपका प्रोडक्शन इस पूरी प्रोडक्शन के बाद भी 100 टन के अंदर ही होना चाहिए. ठीक, कुछ इकोनॉमिस्ट हुए, जैसे कि इकोनॉमिस्ट के अगर मैं बात करूं, रोड्रिक, इकोनॉमिस्ट रोड्रिक एंड सुब्रमण्यम. देखिए, ये जो पर्टिकुलर अभी हम इस स्लाइड पर बात कर रहे हैं ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प नहीं करेगा, टू बी वेरी क्लियर. बट अगर आप ये डेटा, अगर आप ये दो इकोनॉमिस्ट के नेम को अपने आंसर में कोट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एज. ठीक, तो इन रोड्रिक और सुब्रमण्यम का मानना था कि बिकॉज ऑफ 1980s में गवर्नमेंट ने क्या किया है, भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया है, लिबरलाइजेशन या हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं. बट जब मैं ये डेटा को देखता हूं, जब मैं इस डेटा को समझता हूं तो पिक्चर अलग है. पिक्चर क्या है सर? पिक्चर है कि जैसे अगर हम 1980s की भी बात, अगर मैं 1980s की बात करूं पर्टिकुलर, आप देखिए गवर्नमेंट ने भले ही स्टेप्स लिए हों, गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए उसके बाद भी यहाँ पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में कोई भी खास चेंज नहीं देखने को मिला. ओके, बट आफ्टर 1922, और आई कैन से बट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ eighth plan, we can see the huge investment or the increase in investment in the by the corporate sector in the Indian economy, which says the effect of लिबरलाइजेशन और द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991. आप देखिए, चाहे वो 8th प्लान हो या 10th एंड 11th प्लान, ठीक है, हम मानते हैं कि 9th प्लान में हमारी इकोनॉमी में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं देखने को मिले बिकॉज ऑफ सेवरल इश्यूज. वन ऑफ देम कुड बी कारगिल वॉर ऑल्सो.
ठीक, कारगिल वॉर और ठीक है। बट इसके बाद अगर हम बात करें 10th एंड 11th 5 ईयर प्लान में भी और इकोनॉमी में जो कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है इट वाज वेरी गुड। ठीक है, एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड दिस डेटा इज फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, आफ्टर दैट हमने बात की कि 1990 में हम पैसा लेने गए आईएमएफ के पास, बट आईएमएफ was like, okay, I will give you money, but there are some conditions. And what were they? They were, you must devaluate your rupee by 22%. What does the devaluation mean? Devaluation simply mean, देखिए आपको समझना होगा, devaluation means the decrease in the decrease in the value of money, decrease in the value of money. ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे $1 is one $1 is equal to, for example, 80 rupees. Okay, then after devaluation what happens? After devaluation you decrease the value of your money, and in such case $1 would be equal to 85 or 90 rupees, whatever the case may be, but it would definitely increase. ओके, अगर आपको $1 लेना है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। यही होता है डिवैल्यूएशन का मतलब। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे मनी एंड बैंकिंग में, तो आप यहाँ भी कोई टेंशन ना लें, ये अभी आपको समझाने के लिए छोटा सा समझाया। ठीक, तो गो आईएमएफ ने कहा कि नहीं, आपको 22% तक अपना जो रुपी है उसको डिवैल्यू करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। ठीक, जब डिवेल्यूशन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, एंड जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज, यू विल रिसीव द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि ये जो मेरा डेफिसिट है, मैं जब बात करता हूं मेरे डेफिसिट की, देन इन सच केस इट विल गेट रिड्यूस्ड। ओके, देन इंपोर्ट एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ फ्रॉम 130% टू 30%। प्रीवियसली जब भी कोई इंपोर्ट करना होता था गुड और आइटम, तो उस पर गवर्नमेंट हमारी क्या करती थी, टैक्स लगाती थी लगभग 130%। आईएमएफ ने कहा कि नहीं, आप इसको 30% तक लेकर के आए, सो दैट आपका क्या होगा, वहां पर इंपोर्ट ज्यादा हो सकेगा, और आप जो है अदर वर्ल्ड यानी कि आउटसाइड योर इकोनॉमी क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक, then another condition was to reduce government expenditure so that we can control our fiscal deficit, and also to increase in excise duty by 30% so that we can increase our revenue. ठीक, these were the four conditions, or these were four of the most important conditions, ठीक, put forward by IMF. After this next is liberalization. सर अब हम आते हैं किस पर, लिबरलाइजेशन पर। इन सिंपल, लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट removing the restrictions. Okay, and the one of the main objective is to promote the participation. ठीक, by all what I mean by all, I mean private sector। ठीक, तो liberalization is to removing restrictions to promote the participation by all in short private sector, or another definition is rules for making entry and exit easier। सर इसका क्या मतलब हुआ, entry and exit easier? Like before liberalization or before 1990s, we can say we were facing the issue of licensing। ठीक, licensing or license to start a firm and to close it also, ये हम लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किए। बट removing this system removing this system means removing or making entry and exit easier for a firm. This particular case is called liberalization. Now, this diagram says what is liberalization comprises of individualistic idea of freedom, existence of natural order. By natural order, what does it mean? It means absence of restrictions on entry and exit, and competition as the steering wheel. Competition in case of competition after inclusion of private sector, right? Competition after inclusion of private sector.
Then next is policies under liberalization. What are the policies, or what were the steps taken by the government after liberalization? We will discuss all those steps here. First of all, abolition of licensing. In 1991, in 1991, licensing was abolished for all industries except 18 industries. ठीक, 1991 में लाइसेंसिंग को कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया. इट मींस अब क्या होना था? अब ये होना था कि जो फर्म ओनर्स थे, कि जो फर्म्स थी, उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, या मैं कहूँ परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन. याद रखिए, लाइसेंसिंग में एक ये भी प्रोविजन था कि अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक. फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन और फॉर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अब आपको इन्वेस्टमेंट आप कितना भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट का उसमें भी कोई रोल नहीं था. और फॉर क्लोजिंग योर फर्म, ठीक है, एंट्री एग्जिट एंड क्लोजिंग, इन सभी चीजों के लिए भी अब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज. एंड दोज इंडस्ट्रीज वर कोल, पेट्रोलियम, हजार्डस केमिकल एंड ओके, कोल, पेट्रोलियम, ये आपके दो बार आ गए. हजार्डस केमिकल्स, एटॉमिक एनर्जी. करंटली अभी अगर मैं बात करूं तो लाइसेंस आपको किन किन इंडस्ट्री या सेगमेंट में चाहिए, तो ये है हमारा टबैको प्रोडक्ट. आप एक बार इस लिस्ट को फिर से देख लेंगे. ये 1991 में 18 के आसपास हो गया था, बट अभी ये 18 नहीं है, अभी ये 3 या 4 प्रोडक्ट्स हैं. टोबैको, एल्कोहल, एटॉमिक एनर्जी. अगर आपको यहाँ कुछ भी करना है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है. और इसको गवर्नमेंट ने क्या किया था 1991 में? इंडस्ट्रीज जो थी वो इनकी रिक्वायरमेंट को कम किया था. देन सेकंड स्टेप वाज डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्री. सर, डी रिजर्वेशन और लाइसेंसिंग एक ही नहीं है? नहीं. यहाँ पर क्या है, वहां हम प्राइवेट सेक्टर को इनविटेशन दे रहे थे लाइसेंसिंग में, बट थ्रू सम रिस्ट्रिक्शंस थ्रू लाइसेंस. बट डी रिजर्वेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट बिफोर दिस पर्टिकुलर स्टेप वाज लाइक कि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब करूंगा. तो उसमें क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने ये किया कि नहीं, now we are opening other industries also for private sector, and government removed 9 industries from these reservation list, or from the reserved list. So in these 9 industries, now the private sector can invest and take part in the economic activities. And those industries, and out of these remaining industries were remaining. By remaining I mean, still after removing 9 industries, the reserved industries were arms and ammunition, atomic energy, mineral oil. अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ आज भी गवर्नमेंट का ही प्रेजेंस है. ठीक है. इसके बाद रिमूव कंट्रोल ऑन ऑपरेशनल डिसीजंस. व्हाट डज इट मीन? बिफोर बिफोर 1990, आप समझिए कि जब मैंने आपको बोला कि नहीं, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑपरेशनल डिसीजन से भी अपना कंट्रोल हटा लिया. इसका मतलब आप प्रोडक्शन करेंगे, कितना करेंगे, यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है, ये भी आप ही डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन योर विश और डिमांड एंड सप्लाई. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय यू. ऑल्सो क्वालिटी. Now, all such things will be decided by the firm, by the manufacturer. But before that, these things were decided by बैंक, वो सॉरी, गवर्नमेंट. ओके. देन अगर हम समझें तो ये भी क्या है, ये है एक तरह से लिबरलाइजेशन, इन द सेंस कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर मैन्युफैक्चरर. वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर मैन्युफैक्चरर. ओके. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन एक्ट रिप्लेसेस एमआरटीपी. लुक, इन 2002, ओके, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब बात लिबरलाइजेशन की हम कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल वही बातें नहीं होंगी, वही स्टेप्स नहीं होंगे जो 1991 में लिए गए. लिबरलाइजेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस. इवन टुडे आवर गवर्नमेंट इज लिबरलाइजिंग आवर इकोनॉमी. सो वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू दैट पीरियड आल्सो. ओके ना. देन अब हम देखते हैं क्या, कॉम्पिटिशन एक्ट. एमआरटीपी हमने देखा था, इट वॉज अ रिग्रेसिव एक्ट. इट वॉज अ रिग्रेसिव एक्ट एंड इट वॉज एक्टिंग एज अ पनिशमेंट. बट द गवर्नमेंट यूज टू रेगुलेट production. Government used to regulate production through this act. Government used to check or prevent the accumulation of wealth. These accumulation of wealth. गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था वो ये दो चीजें थी एमआरटीपी एक्ट के थ्रू. बट
This act was acting as a regression or was acting against the private sector participation. तो गवर्नमेंट ने 2002 में कहा कि नहीं, now is the time to replace this act with Competition Act. In 2002, Competition Act replaces MRTP, and in 2009 we saw the creation of Competition Commission. Basically, अगर हम बात करें Competition Act, Competition Commission में क्या है? Competition Commission basic has two functions. It increases growth. How? Because it creates the private participation easier, right? And जब private participation होगा तो definitely competition बढ़ेगा. Competition in terms of quality, competition in terms of price, and competition in terms of production also. Okay, so Competition Commission, or we can say after the arrival of the Competition Act, the growth increases. Then it has inbuilt, or we can say it has a tribunal also, where after any decision by the competition commission, a firm can reach out to tribunal for further hearing or for further decision, as the case may be. ठीक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एमआरटीपी को रिप्लेस किया कंपटीशन एक्ट से अंडर लिबरलाइजेशन. रिमेंबर, दिस इज आल्सो अंडर लिबरलाइजेशन. देन इंट्रोडक्शन ऑफ फेमा. हमने देखा कि पहले क्या था हमारे पास था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. बट इन 1999 गवर्नमेंट सेज नाउ इज द टाइम टू इंट्रोड्यूस फेमा. फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. हमने देखा था कि फेरा में क्या हो रहा था कि अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है, ठीक, एंड फॉर दैट यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम आरबीआई और देयर ठीक और देयर ऑफिशियल्स. बट अंडर फेमा गवर्नमेंट सेज नहीं, नहीं, now firms are allowed to make, or now anyone can make international transaction up to a certain limit without any permission. Also, not to forget, under FEMA, ECBs were allowed. ECB, sir, ये क्या है? ECB are simply external commercial borrowing. और आप इसको समझ सकते हैं by ECB. अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो ECB is like corporate sector borrowing, taking loan or borrowings from external or internal market. Sorry, international market. जब भी मेरी कॉर्पोरेट फर्म इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करेगी तो मैं उसको बोल दूंगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. ठीक, दीज ऑल्सो इंक्लूड मसाला बॉन्ड. अब ये मसाला बॉन्ड क्या है सर? ये भी हम अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. मसाला बॉन्ड आप समझ सकते हैं कि ऐसे कि इंटरनेशनल मार्केट से मैं पैसा ले रहा हूं बट इन रुपीस एंड नॉट इन डॉलर. ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी हम आपको इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाएंगे. फर्दर अंडर फेमा इंडिविजुअल लिमिट इंक्रीज टू 2,50,000 डॉलर. सर ये क्या लिख दिया? देखिए, बिफोर दैट अगर कोई भी इंडियन फॉरेन कंट्रीज विजिट करने जाता था तो उसकी एक लिमिट होती थी कि नहीं भाई, आप $1,500 तक ही क्या करेंगे, कैरी कर सकते हैं. ठीक है सर, ऐसा क्यों था? बिकॉज ऐसा इसीलिए था क्योंकि बिफोर 1994 वी वर फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. ठीक, इन सभी चीजों की वजह से गवर्नमेंट क्या करती थी, एक्सट्रीमली रेगुलेट करती थी हमारे ये जो एक्सचेंज रेट्स होती हैं या एक्सचेंज पॉलिसीज होती हैं. और गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं, आप 1500 से ज्यादा डॉलर को क्या नहीं कर सकते, बाहर देश में नहीं ले जा सकते. बट अंडर फेमा हमने देखा कि ये जो लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी गई 2,50,000 डॉलर तक. वाई? बिकॉज आफ्टर this $1,500 limit, there was increase in हवाला ट्रांजैक्शन. ठीक, there was increase in हवाला ट्रांजैक्शन. अब वो क्यों? क्योंकि जब कोई बाहर जाता था इंटरनेशनल मार्केट में, मान लीजिए कोई बाहर गया, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड है डॉलर की वो जरूरी नहीं कि वो 1,500 तक ही रिस्ट्रिक्ट हो. और अगर उसको मानिए $5,000 चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हवाला मार्केट में और वहां से क्या करेगा, अपना पैसा लेगा. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब हम अपना क्या कर रहे हैं, लिमिट को इंक्रीज करते हैं और कहां तक ले जाएंगे, $2,50,000 तक. Also, firms were allowed to bring any amount of foreign investment if they have subsidiary in India. By foreign investment, what do I mean? I simply mean
or you can say FDI. It means global participation in India and also the incoming of foreign exchange, right? It was a step to increase our foreign exchange reserve. ठीक देन नेक्स्ट इज एवरेज परफॉर्मेंस आप इस स्लाइड में हम देखते हैं देखिए देखिए आफ्टर 1991 एंड बिफोर 1991 अगर मैं आपसे बात करूं देन इन दैट केस द पर कैपिटा ग्रोथ रेट average per capita growth rate during 1981 to 1990 was 3.25, which after reforms got to around 4.13 and after that 5.87, which is definitely phenomenal. Also, you can see the FDI, increase in FDI from 0.4%, 0.04% before 1991. Why? Because our FERA was restricted and we replaced it with FEMA, which allows the FDI in the form of external commercial borrowing. And this is the sign. And this is the sign that we are seeing today that we saw the increase. We saw the increase in the percentage of FDI in GDP, which further increased to 1.64 in 2000 to 2010. And you can see the current account balance. Definitely, we are seeing increase in terms of numerical value. How? क्योंकि आप ये कैसे हमारा इंक्रीज हुआ because of increase in export, because of increase in export. And then we also see the remittances. So these are the data from RBI. These are the data from RBI. And after this, I would like to tell you something about liberalization on the basis of Hazari report. देखिए ये भी अगर आपको रिपोर्ट जब पूछी जाएगी तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ ये रिपोर्ट हमारे मेंस में काम आ सकती है जब आपसे पूछा जाए कोई भी पॉइंट अगेंस्ट लिबरलाइजेशन की पर्टिकुलर लिबरलाइजेशन हमारा सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा then in that case also you can quote this report and other report were also एक और रिपोर्ट है जो अगर आप चाहें तो बिल्कुल कोट कर सकते हैं and that report was by दत्ता ठीक so talking about Hazari report this report was on the working of the licensing under industries development and regulations तो इस रिपोर्ट ने बताया था कि कहाँ कहाँ नुआंसेस हैं हमारी लाइसेंसिंग में इन्होंने कहा कि मल्टीपल एप्लीकेशन से इनका मतलब था और खास करके इन्होंने काफी उसके साथ कोट भी किया था बिरला बिरला का नेम और इन्होंने कहा था कि ये जो पर्टिकुलर बिग फर्म्स हैं वो क्या करती हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस लगा देती हैं जिससे कि इनका जो चांस है वो ज्यादा हो जाए एंड ऑल्सो द मेन रीजन वॉज टू फोर क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन कैपेसिटी ठीक है आप समझिए इस बात को कि प्रीवियसली जो एप्लीकेशंस होते थे वो डिजिटल नहीं होते थे है ना आपको जाना है और वहां जाकर के अप्लाई करना है तो ये जो बड़े फर्म्स थे ये क्या कर रहे थे बहुत ज्यादा नंबर्स में मल्टीपल एप्लीकेशंस लगा देते थे जिससे कि जो एप्लीकेशन कैपेसिटी है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और इनकी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं ये एक नुआंसेस बताए थे हमारे किसने हजारी रिपोर्ट में अगला इन्होंने बोला था क्रोनोलॉजिकल सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व अब ये क्या हो रहा था कि मानिए दिल्ली में हम आपसे एप्लीकेशन ले रहे हैं ठीक दिल्ली में आपसे एप्लीकेशन ले रहे हैं कई ऐसे लोग हैं जो मान के चलते हैं हम कोलकाता में होंगे बेंगलुरु में होंगे ये लोग यहाँ पर आएंगे फिर अप्लाई करेंगे बट अब ये बिग फर्म्स क्या कर रही थी ये अपना एक छोटा सा ऑफिस ही खोल देती थी कहाँ पर दिल्ली में ये अपना छोटा ऑफिस खोल देती थी दिल्ली में और अब ये यहीं से इनके लिए एक्सेस करना क्या हो गया आसान हो गया ठीक तो ये जो था कि हाँ ये अपना एप्लीकेशन पहले जाकर के वहां पर पुट कर रही थी और फिर अगेन इनके चांसेस बढ़ गए वहीं पर अगला जो इश्यू था वो था नो फॉलो अप खासकर इसमें फिर से जो केस में इस पर्टिकुलर केस में फिर से नाम लिया गया बिरला का और कहा गया कि ये जो पर्टिकुलर बिग हाउसेस थे ये क्या कर रहे थे एप्लीक लाइसेंसेस ले लेते थे बट आफ्टर टेकिंग लाइसेंस दे वर लाइक अब हमें कुछ करना ही नहीं दे वर नॉट एक्टिंग ऑन इट एंड दिस वाज द मेजर इशू around 50, more than 50% of the licenses which were under Birla they were not taking any action on it. Why? What I mean? I mean after taking licenses they were not creating any activity or not setting up firms
तो अब वो कह रहा था कि ये जो बाकी के जो लाइसेंस इनके पास थे, जहां पर ये लोग कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, वो भी क्या हुए, वेस्ट हो गए। ठीक। तो दीज वर दी रीजंस और दीज वर दी नुएंसेस गिवन बाय दी हजारी रिपोर्ट रिगार्डिंग दी लिबरलाइजेशन। तो आज के हमने इसमें टॉपिक में और आज के हमने लेक्चर में लिबरलाइजेशन को पढ़ा, जहां पर आपको काफी डेटा दिया गया है। ये हजारी रिपोर्ट है, ये कुछ डेटा ऐसे हैं जो आप लिबरलाइजेशन में, खास करके जब आंसर राइटिंग करेंगे वहां पर आप कोट करें, क्योंकि लिबरलाइजेशन आप सिंपल डेफिनेशन से नहीं काम चला सकते। ये आपको बताना होगा कि हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ फेमा का और ये सब हुआ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं। और हाँ, आप, अब हम लोग व्हाट्सएप पर भी आ चुके हैं, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पर हमारे भी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहां से आप जाएं और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करें। ठीक। और again, we got very interesting or very good news for you guys is we are very soon going to launch other courses on geography and history. हिस्ट्री कोर्स जो है वो आपका 5 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा। आप जाएं, इसको ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। वहीं पर ज्योग्राफी जो है वो हमारा 6 सितंबर को लॉन्च होगा। ऑल्सो हम लोग अभी आपकी हेल्प के लिए और आपको आगे ले जाने के लिए मेंस आंसर राइटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो आप जाएं और अपने आंसर्स को सबमिट करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।